Hope my screen is visible to all of you. Okay. So, first of all, I am very much glad that Meeting. this is our fourth Meeting. that this Suryodaya program is being conducted by EHS Services is doing something great for the candidates or for the freshers or the persons who want to pursue something good in the field of EHS and sustainability. Then you should understand that what Dr. Priyanka Arya and EHS Services is trying to make for you and trying to help you so that you can continue or you can make a good career in this particular field. So today's our first. I'm the first person to be who will be taking the classes on the sustainability, GHG, and carbon credit system. After me, there would be one more person, and he will be taking the more deeper insight about the sustainability and other uh, concerned topics for the for all of you. So now you might have understand till now for the last 3 or 4 days that there are many things like environment, health and services, safety services which are being provided to all the organizations or which are mandatory for all the organizations to have uh, in their area so that the persons can do the work freely, they can become safe, and the assets, the human beings, and all and even the environment around them should be safe, and it should be doing they should be doing something good so that the impacts of their activities can be mitigated or minimized. So, what are the objectives of our today's sessions? First, we will be understanding what is the sustainability, what is the word climate change, which is nowadays a very hot topic around the world, and what are the GHGs. And after that, we will understand how the GHG assessment can be done and what are the appropriate activities which should be done so that we can reduce our carbon footprints. And after reducing our carbon footprints in order to become carbon neutral, what are the mechanisms available in today's world? You might be knowing about the word carbon credits and what are the basic definitions which you might be hearing nowadays revolving about around the carbon credits. What is carbon offsetting? What are the carbon credits? And all these things will be cleared in today's session. And in the last, we will understand a very small with a very small example how these carbon credits are being calculated, what is the methodology and how we can or what are the different exchanges or where we can do this carbon trading. So आप लोगों के जो भी इसमें डाउट्स होंगे वी कैन अंडरस्टैंड, और आप लोग मुझसे जो भी इफ देयर इज एनी clarifications you want you can take during this interview or in the last. If there is any particular query, you just park your questions, आप उसको अपने पास रख लीजिए. In the last we will have a 10 to 15 minutes of क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. वहाँ पर आपको जो भी क्लैरिफिकेशंस होंगे, क्वेरीज होंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा. बीच में आप लोग पूछेंगे तो हमारा जो फ्लो है थोड़ा कम हो जाएगा, एंड इन दैट हमारे पास टाइम अभी सिर्फ 1 ही घंटे का है. अंडरस्टैंड? So, what we will be doing, we will be taking 3 modules today. First will be sustainability and climate change, where we will understand the definitions, what are the requirements, कहाँ से ये sustainability आया है, and what is the climate change. इससे क्या issues हैं और क्या problems होने वाले हैं हमें future में अगर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो towards sustainability. Then, what is the greenhouse gases? उसको कैसे we in the module 2 we will understand how to calculate those, and in the module 3 we will understand the carbon credits and the calculations. So first we will understand what is climate change and sustainability. So basically what is the requirement sustainability की? First, जैसा कि आपको इन द EHS also बताया हुआ कि when we are doing something in the organizations, nothing is only for profits and profits. Business we have to do, but since we are doing this business in an environment जहाँ पर लोग भी काम करते हैं, planet भी है, people भी है, and of course when we are doing any business, it is for the profit. So these are the three basic things which is the approach of sustainability. You can say planet, people and profit, PPP.
So basically, what does planet means? Planet means environmental performance. Whenever you are doing any activity or of operational activity of for your business, so कहीं ना कहीं से you are taking something from the environment like water, air, और जो भी फ्यूल हम ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, देन फूड ले रहे हैं, और भी जो भी हम चीज ले रहे हैं, दिस ऑल, ये सब नेचर का पार्ट है. ऑल these आर द एनवायरमेंटल पार्ट्स of the planet. So when we are utilizing all these things for the profit of our business or for the operational activities of our business, देन इट इज़ बेसिकली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उतना ही वापस प्लेनेट को वापस भी दें. जैसे कि अगर हम वाटर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एनी रिवर और इवन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, तो हमें उतना ही वाटर को रिचार्ज करना है, या फिर किसी दूसरी जगह पर हम उतना ही पॉन्ड बना दें, या फिर वाटर रिसाइकलिंग कर दें, कि कुछ भी हम करें. सो इस तरीके से हमें प्लेनेट को संभाल के रखना है. देन देयर आर पीपल, बहुत सारे लोग हमारे पे काम करते हैं, जो इंटरनली हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ हमारे पे कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, देन हमारी कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हो सकती हैं, इवन कम्युनिटीज़ ऐसी हो सकती हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के आस-पास में रहती हैं. गाँव होते हैं, कुछ एनजीओज़ होते हैं, कुछ एसोसिएशंस होते हैं, यूनिटी यूनियंस भी होते हैं. तो इस तरीके के जितने भी सोशल चीज़ें होती हैं हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी हुई, जो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, इवन इंटरनेशनल भी हो सकती हैं. सो ऑल दिस कम्युनिटीज़ और जितने भी पीपल और सोशल चीज़ें हैं, इनको हमें कैसे मैनेज करना है. दैट इज़ कॉल्ड द पीपल पार्ट. एंड द प्रॉफिट पार्ट, ये सभी जानते हैं कि कैसे हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है और धीरे-धीरे इसको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है. बिकॉज़ इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, देन इन द लॉन्ग रन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और बेसिकली सस्टेन नहीं कर पाएगी. सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट, बिज़नेस बेसिकली, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, ये तीनों सस्टेन करना चाहिए ऑन द लॉन्ग रन, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लंबी चलती रहे और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उसका पूरी तरीके से बेनिफिट ले सकें. Understand? So this is the basic approach of the sustainability. Now, there are many things which are basically involved in the sustainability. So आपने पिछले 2-3 दिन 4 दिन में जो भी यहाँ में सीखा है in this सूर्योदय प्रोग्राम, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सर्विसेज, EIA, आपने EHS का जो पार्ट था हमारा, देन EIA का पार्ट था, देन इसके अलावा HR का पार्ट होता है, और जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं, ऑल दीज आर बेसिकली अंडर द टर्म नोन एज सस्टेनेबिलिटी. इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द मस्ट फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इवन ऑफ एनी कंट्री और नेशन. सेकेंडली, एनवायरमेंटल क्वालिटी भी आपके यहाँ पे उतनी अच्छी होनी चाहिए. आपका जो प्रोटेक्शन पार्ट्स होते हैं, इट शुड बी वेरी गुड, एंड परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड द सोशल इक्विटी एंड जस्टिस, सभी को बराबर चांस देना, कहीं पे भी कोई गलत कि कहीं पे भी किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कहीं पे भी कलर, लैंग्वेज, क्रीड, कास्ट, ट्राइब, इस तरीके से किसी में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए. और इवन यू शुड बी प्रोवाइडिंग social justice to all the persons who are involved with your organizations. So these are the main simultaneous for the sustainability. Now we are going towards the sustainability development. So basically, the ability or capacity of something to be maintained on a longer run, खुद को कितना लंबे टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरों को एंड्योर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी. नाउ for the sustainable development, there is a definition provided by United Nations, in which that development that meets the needs of the present without compromising the ability for future generations to meet their own needs is the सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो हिंदी में अगर हम इससे डिस्कस करते हैं, सो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका कंट्री, आपका जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो अपने जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द ऑपरेशनल नीड्स, अपने को सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है. चाहे वो नेचुरल चीज़ें हों, चाहे मैन मेड चीज़ें हों, उनको पूरी तरीके से यूज़ कर सकता है. देयर इज़ नो लिमिटेशंस फॉर एनीवन, बट at the same time you should be doing all these things very effectively, very efficiently, so that there
जो फ्यूचर जनरेशंस आने वाली हैं, उनकी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो उनको भी ये चीज़ें उतनी ही मिले जितनी हमारे पास अभी हमें हमें मिल रही हैं। इवन बेटर मिले तो और ज़्यादा अच्छा है, बट उससे कम नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो व्हेन द एनी कंपनी, एनी कंट्री और हम लोग जब भी अगर सस्टेनेबिलिटी में काम करते हैं, सो इफ वी आर डूइंग सम इम्प्लीमेंटेशन और एक्टिविटीज सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर हो और सस्टेनेबल हो, तो उसके कई सारे फायदे हैं। फर्स्ट, हमारी जो रेपुटेशन अच्छी होती है। नाउडेज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम कर रही हैं टू बिकम मोर सस्टेनेबल, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। नॉट ओनली मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे बिकते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है। देन उसके बाद उनके जो शेयर मार्केट वगैरह होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छी है और उनको ऑन अ लॉन्गर टर्म पे वो अच्छा रिटर्न देगी। देन बेटर रिस्क मैनेजमेंट होता है। सो बेसिकली देयर इज़ अ वन पार्ट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी जिसमें आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। जो भी चीज़ हो, चाहे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप पहले काम करने से पहले उसका असेस करेंगे कि उसमें कितना नुकसान हो सकता है, कितना खतरा है, देन ओनली यू विल डू द इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आप बिज़नेस उसमें उसी तरीके से करेंगे। देन जो भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, नई कंपनी लगा रहे हैं कहीं पे कहीं पर अगर आप कुछ नया फैक्ट्री लगाने वाले हैं, किसी नई जगह पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वहाँ पे जब आप जाएँगे, वहाँ पे एनवायरमेंटली देखेंगे कि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ तो नहीं है। वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है, सोशल इश्यू है, कोई एनवायरमेंटल इश्यू है, तो देन यू विल बी नॉट बी पुटिंग योर मनी, अपना एफर्ट्स नहीं लगाएँगे, अपना टाइम नहीं लगाएँगे उस जगह पर कुछ भी अपनी फैक्ट्री लगाने में। क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बंगाल में हुआ था, टाटा नैनो की जो फैक्ट्री लगी थी, फैक्ट्री लगाने गए, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, बहुत पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, बट वो इन द लास्ट वो नहीं हो पाए। जो भी रीज़न हुआ हो, पॉलिटिकल रीज़न, एनवायरमेंटल रीज़न या फिर फाइनेंशियल, जो कुछ भी रीज़न हुआ हो, ऐसा कोई भी रीज़न आपको पहले से ही असेस करना होता है एंड उसके लिए मिटिगेट करना होता है। सो दिस इज़ द बेसिक रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गनाइज़ेशन। देन इम्प्रूव्ड कस्टमर रिटेंशन। वंस योर ऑर्गनाइज़ेशन इज़ सस्टेनेबल, देन डेफिनिटली आपके जो कस्टमर्स हैं, दे विल बी रिटेनिंग विथ यू, वो आपके साथ लंबे टाइम तक रहेंगे एंड योर बिज़नेस विल बी प्रॉफिटेबल एट द लास्ट। देन इनोवेशंस होंगे, कॉम्पिटिटिवनेस होंगे, कॉस्ट सेविंग्स होंगी, आपकी सप्लाई चेन बेटर होगी। आप उन क्योंकि देयर इज़ अ पार्ट इन सस्टेनेबिलिटी जिसमें आप अपने सप्लाई चेन पे भी काम करते हो। वो कितनी एफिशिएंट होगी, कितने ज़्यादा बेटर होगी और हर चीज़ के लिए उसमें स्टैंड बाय भी रहता है। सो वन्स ऑल दीज़ थिंग्स आर गुड, योर ऑर्गनाइजेशन इज़ सस्टेनेबल, आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपके जो रेगुलेटर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ अच्छी रेपो बन जाती है और आपके जो भी काम होते हैं, आप बहुत ईज़िली हो सकते हैं। शेयर होल्डर्स आपके खुश रहते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा आता है, प्रॉफिट अच्छा आता है एंड ऑल दीज़ थिंग्स होती है। और इन केस कहीं पे कोई चेंज होता है इन द मार्केट, इन द एनवायरनमेंट, जैसे पैंडेमिक हुआ, अगर इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी नए चेंजेस आते हैं इन द गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, देन योर ऑर्गनाइजेशन इज़ मोर अडैप्टिव टू दोज़ चेंजेस एंड आपको टाइम नहीं लगेगा एंड विदिन द वेरी शॉर्ट पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी चेंजिंग एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेज़ेंट सिनेरियो। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी ऑर्गनाइजेशंस के फ़ायदे। नाउ व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने अप टू 2030 के लिए देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको एसडीजीज़ बोलते हैं, जिसको आइडेंटिफ़ाई किया है एंड उसको अडॉप्ट किया है। नाउ 12 टिल 2030 दे विल बी डूइंग, यूनाइटेड नेशंस ने जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, आईएफसी है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, ये जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन सभी को ये टारगेट्स दिए हुए हैं कि यू हैव टू डू समथिंग इन दिस ऑल दिस 17 पैरामीटर्स। और दे आर मेकिंग अ रिपोर्ट ऑन एन एनुअल बेसिस कि हम अपने 2030 के जो टारगेट है उससे कितना आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, किस सेक्टर में कितना चल रहे हैं। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देन आई विल अर्ज
कि आप लोग जाएँ और इंटरनेट पे आप लोग सर्च करें कि एक एनुअल रिपोर्ट जो है, वो आप लोग डाउनलोड करें और उसको पढ़ें, जिससे आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। एंड दिस इज़ द कोर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज़ थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, हर साल पिछले कई सालों से ये रिपोर्ट बनती आ रही है। इफ यू आर गोइंग टू रीड ऑल दीज़ रिपोर्ट्स, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्या चेंजेस आए हैं, क्या फ़ायदे इससे होंगे और हमें अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या करना चाहिए। So that we can we can match all the best organizations and the current scenario in the world. Now we have understood something कि what is sustainability, उसकी definition हमने समझ ली क्या होता है। बेसिकली हमने थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू लिया है। बेसिकली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी, देन देयर यू कैन जॉइन विथ अस, और हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली कोई भी आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, या फिर इवन ईएचएस के बारे में भी कैन नॉट प्रोवाइड वेरी in depth knowledge in any type of classes or in any type of courses. So आपको अगर समझना है तो you have to get on the ground, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, देन अकॉर्डिंगली आप उसको समझ पाएंगे। सो इट विल टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू विल अगर इसमें कहीं पे भी किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करना है, सो वेरी मच वेलकम। आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में काम कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, साइट विजिट्स कीजिए, और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। सो बेसिकली सभी ने बहुत Anshu, sorry, I will interrupt over here. yes, sir. You touch very relevant portion for the to work with us on different projects as a voluntarily to gain the practical experience if they want to be, and if anyone wants to be part of our ongoing projects, but certainly it is a voluntarily approach, and we will not pay anything because we are going to be give you the field experience. You have to make your own everything arrangements. Uh, Certainly, if you assist us on our projects uh, majorly, then we will look into what benefit we can transfer to you because you are supporting us. But initially, yes, we can allow you as a student, as a newcomer, as a practitioner, or whichever so be in our ongoing projects. So just to give an idea and overview about the different projects in around the environment, health, safety, and sustainability. This I want to be add into your statement, Anshu. Thank you. So rightly said by Dr. Arya, we are basically providing this Suryoday course also, or even we can also provide the practical experience. I am theoretical तो आपको बता ही रहे हैं, we can also provide the you practical experience, but certainly since वो आप सीखने के लिए आए हैं, तो we are not taking something from you, and we will cannot be provide something to you, but हम आपको एक्सपीरियंस दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। सो बेसिकली द मोटो ऑफ दिस सूर्योदय प्रोग्राम इज कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें और हम एक लॉन्ग रन में साथ में कोलैबोरेट कर सकें। So this is the basic idea of Suryoday. Now we will come again on the climate change. अब हम सब कुछ definitions पढ़ते हैं जो कि आप लोग बहुत on a regular basis सुनते रहते होंगे। So first is greenhouse gases. What is the greenhouse gases? So basically जो क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस ने व्हाट दे हैव आइडेंटिफाइड कि कुछ गैसेस ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। बेसिकली जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस का अगर ऐसी हैं जिसका अगर प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, रेशियो बढ़ जाता है, सो दे हैव द एबिलिटी कि वो अपने अंदर अपने एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में हीट को एक लंबे टाइम तक 1 साल, 2 साल, 100 साल, 50 साल इस तरीके से लंबे टाइम तक वो होल्ड कर सकें। और जब वो गैस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, so obviously since they have the potential to absorb the heat for and contain it for a longer term,
वो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। तो सिंस वो जब वो गर्म करेगी, सो हमारा जितना भी क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो गया है ऑलरेडी, और काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। सो व्हाट आर द गैसेज़? उस गैसेज़ को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेज़। जो ग्रीन हाउस गैस का फिनोमेना होता है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए उनको जीएचजी गैसेज़ बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस मतलब जीएचजी। So these are the gases: CO2, CH4, N2O. Ozone layer is itself an a GHG gases: O3, CFCs, HFCs, HCFCs, PFCs, and SFCs. So ये जितने भी gases हैं, all these are the greenhouse gases. So basically, they have the ability to absorb the infrared radiation. Now, what is climate change? So basically, कोई भी ऐसा significant change in the climate जो कि बहुत लंबे टाइम तक है। मतलब बेसिकली आपने जो बचपन में देखा होगा, आज से 25, 30, 40 साल पहले, 50 साल पहले जो मौसम होता था, जो उस टाइम पे जो क्लाइमेट था, अभी वो क्लाइमेट नहीं है, इट हैज़ कंप्लीटली चेंज्ड, और कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा सीवियर चेंजेस भी इसमें आए हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। ये एक लंबे टाइम तक अगर आप देखेंगे तो फिनोमेना आपको पता चल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? सो बेसिकली जो पूरे हमारी एवरेज जो हमारी वर्ल्ड है, ग्लोब ग्लोब है, अर्थ है, इसका जो एक एवरेज टेम्परेचर जो पहले था, वो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले 39 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब ये 40, 41, 42 के आस-पास जा रहा है। 41 के ऊपर ही बेसिकली जा रहा है। प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हो चुका है। सो क्या होता है, ये हमें लगता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज़्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, जिससे ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। इवन अंटार्कटिका वगैरह और दूसरे ऐसे जगह जहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती थी, ऑलमोस्ट अराउंड द ईयर वहाँ पे अब पिघलने लग गई है, और अब बहुत ही कम टाइम के लिए रहती है वहाँ पे बर्फ। सो होता क्या है, वो बर्फ जब पिघलेगी तो क्या, सी लेवल जो है वो राइज़ होता है, और जैसे सी लेवल राइज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से जो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, वो डूबना शुरू हो गए। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ देयर इज़ वन टर्म दैट इज़ नोन एज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस में बताया था कि हर एक गैस के अपनी-अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड ईच गैस हैज़ द प्रॉपर्टी कि वो कितने लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में स्टेबल रह सकती है। देन देयर आर सम गैसेस, उनको जो जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसमें कुछ गैसेस हैं जैसे एचसीएफसीज़, एचएफसीज़ वगैरह जो हैं, ये सब दे हैव द पोटेंशियल कि वो और भी बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करके लंबे टाइम तक, मतलब एब्ज़ॉर्ब करके रह सकती हैं। बट क्या है, हर एक गैस का अपना-अपना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। जिसके लिए यूनिट रखी गई है CO2 को, क्योंकि CO2 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 यूनिट है, तो CO2 1 यूनिट को अपने अंदर लेके, अपने हीट को अपने अंदर एटम के अंदर एब्ज़ॉर्ब करके रख सकती है। इसी तरीके से CH4 है, तो वो 240 के आस-पास को कुछ रख सकती है। HC, HFC जितनी भी गैसेज़ हैं, ये फ्लोरोकार्बन्स वगैरह जितने भी हैं, ये दे हैव 1000 टाइम्स मोर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देन CO2s। सो व्हाट इज़ दिस HFCs वगैरह, जो जितने भी हमारे एसीज़ वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेशन में जितने भी हमारे गैसेज़ यूज़ होते हैं, दीज़ आर द ऑल दिस CFCs, HFCs, PFCs वगैरह होती हैं। सो दे हैव द मोर पोटेंशियल देन द CO2। बट प्रॉब्लम क्या है, जितनी भी ये जो गैसेज़ हैं, ये सभी गैसेज़ बहुत कम टाइम, इनकी लाइफ़ बहुत कम है। ये कुछ टाइम बाद स्प्लिट हो जाती हैं, और कुछ दूसरी गैसेज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट CO2 बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब करके रखती है, बट इट हैज़ मोर स्टेबिलिटी। ये लंबे टाइम तक 100 साल, 200 साल, 500 साल तक ये रह सकती है इन द एटमॉस्फियर। सो इवन ये कम अमाउंट में रखती है, बट इट हैज़ द एबिलिटी, इसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देती है, और इसीलिए जितने भी हम जो कार्बन कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, इसमें हम कार्बन बोलते हैं। ऑल्दो ये सब अलग-अलग गैसेज़ हैं, बट हम उसको स्पेसिफिकली कार्बन या CO2 बोलते हैं, क्योंकि इट हैज़ द मोर डेडली थिंग, क्योंकि स्लो है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रखता है। नाउ मिटिगेशन एक्शंस, सो बेसिकली हम जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारे कार्बन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, किसी भी चीज़ से, चाहे हम पेड़ लगाएं, चाहे हम चेंजेस करें इन आवर टेक्नोलॉजी, चाहे और वी डू सम न्यू इनोवेशंस, और वी चेंज आवर फ्यूल, कि हमने पहले डीजल से पेट्रोल पे गए, देन पेट्रोल से CNG, देन CNG से फिर हम
बैटरी पे जा रहे हैं और इवन क्लीनर पे अगर हम सोलर पे जाते हैं। सो इस तरीके से अगर वी आर चेंजिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, हमने एफिशिएंसी अपनी बढ़ा दी, हमने काम कम कर दिए। इस तरीके से इफ वी आर मिटिगेटिंग द और वी आर रिड्यूसिंग द जीएचजीस एमिशंस इन द एटमॉस्फेयर, देन दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन मेजर्स एक्शंस। सो होता क्या है, व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। सो व्हेनेवर देयर इज एन रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन टू आवर अर्थ, देन देयर इज सम पार्ट व्हिच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ozone itself, then some part touches to the ground and it should be reflected back to the upper atmosphere and even after that into the space. बट होता क्या है कि जो हमारी अर्थ से जो टकराती है, जो भी सनरेज वगैरह हैं विद द हीट, ऑब्वियसली वो जब वापस जाती है और टू गेट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और स्पेस में जानी चाहिए, उनको ये जितनी भी गैसेस होती हैं, GHG गैसेस जितनी भी होती हैं, ये बीच में ट्रैप कर लेती हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और लंबे टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं। सो इफ वी हैव अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दिस गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, देन ऑब्वियसली वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी वार्मिंग की बात चल रही है। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट ने बोला है दैट अर्थ वार्मिंग इज जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो फेज था हमारे अर्थ का, दैट इज ऑलरेडी गॉन। नाउ वी आर इन द स्टेज ऑफ द ग्लोबल बॉइलिंग। अब हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना बहुत ज्यादा स्पीड में शुरू हो गया है ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज एंड और हमारे जो डेली में हम लोग जितना भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज जो भी करते हैं, सभी की वजह से जीएचजी एमिट होती है। चाहे हम खाना वेस्ट करते हैं, फूड वेस्ट करते हैं, वाटर वेस्ट करते हैं, कोई भी मटेरियल वेस्ट करते हैं, पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, जो कुछ भी हम करते हैं, इन सभी चीज़ों से हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करती हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करती है। सो ग्लोबल वार्मिंग से प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेट चेंज से इतना प्रॉब्लम क्या है? अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री अगर बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है? सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज होगा, सो हमें फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जगह-जगह पे आपने देखा होगा कि जितने भी जो फर्टाइल लैंड्स थे, पहली बात तो पानी की कमी हो गई है, अच्छे पानी की कमी हो गई है। देन फ्रेश वाटर की, देन इसके बाद जो फर्टाइल लैंड्स थे, वो चेंज हो गया, वो बैरन लैंड्स बनने शुरू हो गए हैं धीरे-धीरे। आपने बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा और फ्रीक्वेंट इतने चेंज हो रहे हैं क्लाइमेट में कि जब बारिश आनी चाहिए तब आती नहीं है, जब नहीं आनी चाहिए तब आती है। एक तो आती नहीं है तो जिससे ऑलरेडी जो हाँ, फील्ड्स में जो जितनी यील्ड होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल जो जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, वो ऑलरेडी कम हो जाती है और जो बची-कुची ठीक होने वाली होती है, तो लास्ट टाइम पे बारिश आके उसको खराब कर देती है। सो फूड सिक्योरिटी इज़ अ मेजर चैलेंज, देन वाटर की अवेलेबिलिटी, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी। वाटर पूरी दुनिया में बहुत है बट इट इट इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर, इट कैन वी कैन नॉट यूज़ इट, वी कैन नॉट ड्रिंक इट। देन सिटीज़ जितनी भी कोस्टल एरियाज़ वाली हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो डूबना शुरू हो गई हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा अंदर तक पानी जा चुका है। अगर आप अपने कोई भी कोस्टल एरिया में रहता हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज से 50 साल, 40 साल पहले कोस्ट कहाँ पे था और आज की डेट में कहाँ पे, यू विल अंडरस्टैंड। देन पब्लिक हेल्थ में सिंस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वी आर नॉट गेटिंग फ्रेश वाटर, गुड वाटर, प्योर वाटर, फूड सिक्योरिटी जब हो रही है मतलब खाना कम मिल रहा है लोगों, सो वी आर यूजिंग herbicides, pesticides and insecticides to get the more yield of the agricultural product ना, so उसकी वजह से हमारे पब्लिक हेल्थ पे भी इश्यूज आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। जो हम बात करते हैं कि जीएचजीएस एमिट हो रही हैं, किस एक्टिविटीज से एमिट हो रही हैं, सो ऑल्दो वी आर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी यूज है, एग्रीकल्चर, इवन एग्रीकल्चर से भी CO2 एमिट होती है। कैसे होती है? इट इज़ वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रीज़ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बिज़नेसेस होते हैं, उन सभी से जीएचजी एमिशंस होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि यू कैन आप इस जो 2011 में जो सर्वे हुआ था, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हमारी ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है। आप देखेंगे घर में आपके बहुत ज़्यादा सभी चीज़ें डिवाइसेज़ ऐसे हैं, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेजर पार्ट, जिसकी वजह से जीएचजी एमिशन सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी। देन द सेकंड इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट,
रॉ मटेरियल का भी हमारा खुद का पब्लिक का ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वो सभी बहुत ज़्यादा 27% का इम्पैक्ट करता है इन द जीएचजीएम इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ एंड इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं मेजर हैं, इसके अलावा भी छोटी-छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बट ये जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जीएचजीएम एमिशंस होता है। हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? येस, ऑफ कोर्स वी हैव द रेगुलेटर इन आवर ओन हैंड। हम वी अंडरस्टूड कि इश्यूज़ क्या हैं, वी अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो रही है, बॉटलनेक्स क्या है, किसकी वजह से हो रही है। नाउ ओनली थिंग इज़ कि हमें एक्ट करना है। जब हम एक्ट करना चाहते हैं तो इसमें कई बार ऐसे लोग कई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, इवन लोग भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। बट उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, व्हाट कैन आई डू एज़ एन इंडिविजुअल, एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन, व्हाट शुड आई डू, किसको मुझे इन्वॉल्व करना चाहिए, कहाँ से मैं क्या प्रोग्रेस इम्पैक्ट करूँ, मेज़र करूँ। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं और ये अंडरस्टैंड करना ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Because you can get all these things on the internet on the websites also, but you should understand कि होता है क्या, इसके जो की इश्यूज हैं कहाँ से ये आया है वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जीएचजी होता क्या है। हमने समझ लिया जीएचजी क्या होता है। अब इसके एमिशंस को हम कैसे समझेंगे और कैसे हाउ विल वी कैलकुलेटिंग द कार्बन फुटप्रिंट। सो we will be using the term GHG assessment or the carbon footprint assessment or GHG footprint. All these are the same terminologies. इसमें Sir, your voice is not coming. हेलो, अभी सही है? अभी सही है मेरी आवाज? Anshu, it is perfectly fine. Continue. ओके सर। सो बेसिकली व्हाट मैंने आपको भी समझाया था कि व्हाट इज जीएचजी एमिशन। इसका और बेटर आपको ये इस पिक्चोग्राम में आप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कुछ सनरेज आती हैं, कुछ टकरा के वापस जानी चाहिए, बट वो हमारे अर्थ सरफेस जो हमारा ब्लैंकेट है, एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर बेसिकली, उसमें वो रुक जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस जीएचजी गैसेस। कौन-कौन से जीएचजी गैसेस हैं? इन दिस पिक्चर और इमेज यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमें CO2 इम्पैक्ट करता है, देन CH4, देन N2O, HFCs, PFCs एंड SF6। ऑल दीज़ आर द मेजर गैसेस व्हिच आर द कल्प्रिट यू कैन से। यही जो मेजर कल्प्रिट हैं जिसको हमें रोकना है, जिसको हमें किसी भी तरीके से कम करना है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो दैट जो ऑलरेडी डैमेजेस हो चुके हैं उसको हम धीरे-धीरे रिकवर कर सकें और फ्यूचर में जो इवन मोर डेंजर और मेजर कैटास्ट्रोफिक चेंजेस होने वाले हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑन अ डेली लाइफ में, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। So this सबसे first is CO2. If we remove the CO2 from the atmosphere, then the major part can be done, और हम बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। बाकी ये जितनी भी दूसरी गैसेस हैं हम उसको वी कैन ट्राई, बट CO2 इज द मेजर थिंग। ठीक है। अब नाउ ग्रीन हाउस गैसेस में यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्यूरिंग द टर्म ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कि किसका पोटेंशियल कितना होता है। इन दिस ग्राफ यू कैन अंडरस्टैंड कि if a 1 unit of carbon, for example, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक एटम है वो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 1, मतलब वो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसका। एंड सबसे ज्यादा फ्लोरोनेटेड गैसेस जितनी भी हमारी एसीज और रेफ्रिजरेशन में होती हैं उसका थाउजेंड्स से लेकर 10,000 तक उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। इतनी ज्यादा गैस को वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है as compared to the one of carbon dioxide, 30 in the methane, 300 in the nitrous oxide and 10,000 तक होता है in the fluorinated gases। But at the same time आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में और इन आवर एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है। सो 76% जो कंसंट्रेशन है वो CO2 का है, 16% मीथेन का है, देन नाइट्रस ऑक्साइड, देन फ्लोरिनेटेड गैसेस। सो इवन दो Oh, oh. फ्लोर एचएफसीज और पीएफसीज जितनी भी गैसेस हैं दे हैव द मोर पोटेंशियल, बट उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिव। बट कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऑल्दो वो बहुत कम उनका GWP है, बट वो लंबे टाइम तक भी रहती है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा खतरनाक जो है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
अब हम ग्रीन हाउस गैस को कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिकली। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स व्हिच आर used widely in the organizations. फर्स्ट इज प्रोडक्शन बेस्ड अकाउंटिंग, कि जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें क्या क्या इनडायरेक्ट एमिशंस होते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली नेशनल कंजप्शन ओवरऑल क्या हो रहा है उसके हिसाब से करना है। देन द सेकंड वन इज कंजप्शन बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि जितना भी आपने रियल कंजप्शन किया है, मतलब कितना इनपुट आया कितना आउटपुट आया, उसको आप बैलेंस करते हैं, मास बैलेंस जिसको बोलते हैं। देन सेक्टोरल कंपैरिजंस भी होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, अगर स्टील की इंडस्ट्री है उसका सेक्टोरल जीएचजी गैसेस होते हैं, वो अकाउंटिंग होता है, वो अलग होता है। देन जो जितनी भी एनर्जी वाली फ्यूल वाली, जितने भी हमारे क्रूड ऑयल वाली, जितनी भी ऑयल एंड गैस वाली होती हैं, उन सभी का अलग कंपैरिजन होता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर का अलग कंपैरिजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का अलग होता है, एनर्जी फील्ड का अलग होता है। तो सभी के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को कंपेयर करके, मास बैलेंस करके उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड अकाउंटिंग मेथड अक्रॉस द वर्ल्ड। कुछ प्रोडक्शन बेस्ड भी करते हैं, बट सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कंजम्पशन बेस के पे ही होता है। सो कैसे इसको करते हैं? सो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल भी है, देन आईपीसीसी भी है, देन कुछ गवर्नमेंट के कुछ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं। इन सभी ने अपनी-अपनी रिसर्चेस किए हैं और उन्होंने बहुत सारे अकाउंटिंग टूल्स बनाए हैं, जिससे कि लोग समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें और मैनेज कर सकें अपने ग्रीन हाउस गैसेस को। So basically what Greenhouse Gas Protocol has done it in association with World Research Resources Institute or with the World Business Council for Sustainable Development and some other organizations of the United Nations, उन्होंने क्या किया है, रिसर्चेस किए हैं कि किस गैस को या फिर किस फ्यूल को, किस एनर्जी को यूज करने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जीएचजीस निकलती हैं। हो सकता है उससे एचएफसीज़ भी निकलती हों, हो सकता है उससे सीएच4 भी निकलते हों और इवन नाइट्रस ऑक्साइड, ओज़ोन भी निकलती हो। सो ऑल दीज़ गैसेज़ जितने भी हैं, इनके निकलने को उन्होंने सब कैलकुलेशन करने के बाद उन सभी को इन द टर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में स्टैंडर्डाइज करने के बाद कुछ फैक्टर्स निकाले हैं, जिससे कि लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सिंप्लीफिकेशन हो और सिंपली उसको वो अंडरस्टैंड कर सकें और इन्वेंटरी मैनेज कर सकें, सो दैट दे इट इट इज़ वेरी ईज़ी एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगर ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, देन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस और इवन द कंट्रीज विल नॉट ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन इन दिस थिंग्स। देन इंफॉर्मेशन इसको ये रेगुलरली अपडेट भी करते रहते हैं विद द टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे उसमें क्या इन्वेंशन हुए हैं, क्या फैक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, ड्यू टू द क्लाइमेट्स, ड्यू टू द एरिया, ड्यू टू द यूजेस ऑफ और इवन द जो फ्यूल में, जैसे BS4 जो पहले आता था उसमें अलग फैक्टर्स थे, आज BS6 जो आने लग गया है उसमें अलग फैक्टर्स होने लग गए हैं, व्हीकल्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने फैक्टर्स को रेगुलरली चेंजेस करते रहते हैं, और जितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ये देते जाते हैं, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है। इन 2006 इट वाज़ अडॉप्टेड बाय ISO। ISO 14064 जो है वो स्टैंडर्ड बना था इन 2006, जिससे कि हम अपने ग्रीन हाउस गैसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और इवन क्वांटिफाई कर सकें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो जैसे GRI हो गया, जी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, इक्वेटर प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिव प्रिंसिप PRI जो है, देन IFC है, ISO है, CDP है, और भी SBTi आजकल आ गया है, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। सो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि आप अपने सस्टेनेबिलिटी और GHG के पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, उनमें उनको कुछ मिटिगेट करने के लिए एक्टिविटीज कर सकते हैं और अपने टारगेट्स बना के एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एक पार्ट बना सकते हैं। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जीएचजी जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। जो मैं आपको जीएचजी प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में बता रहा था, सो उन्होंने क्या किया है, फैक्टर्स तो बनाए हैं, साथ में उन्होंने डिवाइड कर दिया है जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी।
जिससे कि यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड इजीली मैनेज द मेजर द ग्रीन हाउस गैस एक्टिविटीज ऑफ योर्स। आप कैसे उस इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे? सो बेसिकली व्हाट दे हैव डन, आईएसओ ने क्या किया है, दे हैव सेपरेटेड एक्टिविटीज। वन इज डायरेक्ट एमिशन, द अदर वन इज इनडायरेक्ट एमिशन। उन्होंने आईएसओ के अकॉर्डिंगली 14064 के अकॉर्डिंगली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमिशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन द डायरेक्ट पार्ट, जितनी भी एक्टिविटीज आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की खुद की हैं, जिसको वो 100% पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, दोज आर द डायरेक्ट एमिशंस। लाइक आपके व्हीकल्स हैं, आपकी जितने भी जनरेटर सेट्स हैं, बॉयलर्स हैं, और भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपकी है जिसमें कि एनर्जी का यूज होता है, ऑल दोज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ओन्ड कंपनी है, जिसके खुद के नाम पर है वो कंपनी के। सो ऑल दीज आर द एमिशंस। उसकी वजह से जो भी एमिशंस होता है वो डायरेक्ट में आता है। देन एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी आपके डायरेक्ट एमिशन में आता है एज पर द, नहीं सॉरी, ये इनडायरेक्ट एमिशन में आता है एज पर द आईएसओ 14064। बट जेजे प्रोटोकॉल ने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। स्कोप 1 जितने भी कंपनी के ओन्ड एसेट्स होते हैं, गाड़ी हो गया, फ्यूम बर्नर्स, डीजी सेट्स वगैरह जितने भी आपके हो गए, उन सभी में जो भी फ्यूल यूज़ होता है और उसकी वजह से जो भी जीएचजी एमिशंस होता है, ऑल दिस कम्स अंडर द स्कोप 1 और डायरेक्ट एमिशंस। स्कोप 2 एमिशन में क्या होता है, इन एज फॉर द इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं, इट कम्स इन द स्कोप 2। उसका जो भी फैक्टर है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ने भी, बोर्ड्स ने भी एक फैक्टर निकाला हुआ है, और जीएचजी प्रोटोकॉल्स और आईपीसीसी वगैरह ने भी अपने-अपने फैक्टर्स निकाले हुए हैं। सो एज पर द रिक्वायरमेंट आप किसी भी फैक्टर से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड देयर इज अ स्कोप 3। अपार्ट फ्रॉम बोथ दिस स्कोप, जो भी एक्टिविटी आपकी होती है, आपके वेंडर्स करते हैं, आपके एम्प्लॉयज जो डेली अप डाउन करते हैं, आप बिजनेस ट्रैवल पे कहीं से कहीं जाते हैं, जो भी आप वेस्ट जनरेट करते हैं उसको डिस्पोजल में जो भी एनर्जी यूज होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके यहाँ पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो आपका होता है, आपने कुछ आउटसोर्स एक्टिविटीज की होती हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द स्कोप 3 और द इनडायरेक्ट एमिशंस। तो ये 3 तरीके के स्कोप होते हैं जिसको आप मेज़र करते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं विद द एक्शंस ऑफ योर्स, कि स्कोप 1 में हमारा ज़्यादा हो रहा है, सो हम इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, ट्रिप्स अपनी जो व्हीकल्स हैं उनकी कम कर सकते हैं, फ्यूल चेंज कर सकते हैं, ऑल दीज़ थिंग्स। स्कोप 2 में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं, देन वी कैन यूज़ द solar rooftops, or we can buy the electricity from the renewable power plants. So इस तरीके से we can do something in the scope 2 emissions. To mitigate the scope 3 emissions, what we can do, we can ask we can have a fleet of battery EVs, or we can have the fleet of vehicles which are using greener fuels। वेस्ट को कम कर सकते हैं, अपने बिजनेस ट्रैवल को कम कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट और यू कैन से ग्रीन फ्यूल वाली बसेस हम अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि उनका जो डेली का जो कम्यूट है, वो एम्प्लॉयज़ का ट्रांजिट है वो कम हो सके। ऑल दिस थिंग्स वी कैन डू, जिससे कि हमारा स्कोप 3 का एमिशंस कम हो सकता है। ठीक है। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स, जिसमें कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्कोप 1 में जो मैंडेटरी होती हैं, जैसे रेफ्रिजरेंट गैसेस होती हैं, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स होता है एज पर द जीएचजी प्रोटोकॉल्स। एनेस्थीसिया वाली गैसेस होती हैं, और जो प्रिंटिंग में यूज़ होती हैं लेबल्स वगैरह में, वो बहुत ज़्यादा हाईली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जिनका होता है। देन इसके अलावा गैस जो भी हमने अपने इक्विपमेंट्स में यूज़ की है, डीज़ल्स यूज़ किया है बॉयलर्स वगैरह में, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, हमारे खुद के जो जितने भी ओन्ड व्हीकल्स हैं वो, प्लस जितने खुद के डीजे सेट्स वगैरह हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द स्कोप 1, और ये मैंडेटरी है। आप कहीं पे भी अगर जीएचजी एमिशंस में जाएँगे, सो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द ऑर्गनाइजेशंस टू हैव द इन्वेंटरी, एंड उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ मेजर्स होना चाहिए। नाउ द सेकंड स्कोप 2 इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंडियन पार्ट। ये जितना भी है मैंडेटरी है, आपको इसको कुछ करना ही है, आपको अंडरस्टैंड करना है, मेजर करना है, इन्वेंटरी करना है, और इसको कम करने के लिए कुछ टारगेट्स अपने लिए बना के रखने हैं। नाउ द थर्ड वन इज स्कोप 3। ये थोड़ा बहुत ऑप्शनल होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास रखती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको मेजर नहीं करती हैं। So if you are an sustainable organization, then you will try to measure the scope 3 also,
और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मैंने ऐसी देखी हैं फॉर इन आवर एक्सपीरियंस, जो स्कोप 3 को भी अपने परव्यू में लेने लगी हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनके कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स है, उनके इन्वेस्टर्स की और इवन अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव्स की भी रिक्वायरमेंट्स आज के लिए होने लगी है। सो जितनी भी फ्लाइट ट्रिप्स होती हैं, पेपर कंजप्शंस हो गया, एम्प्लॉयी कम्यूट हो गया, बिज़नेस ट्रांज़िट्स हो गए, जितने भी रिक्वायरमेंट ये सभी चीज़ें होती हैं, ऑल दिस कम्स अंडर द स्कोप 3। आप धीरे-धीरे जैसे इसमें काम करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि स्कोप 1, 2, 3 में क्या था डिफरेंस है। थोड़ा बहुत इसमें कभी-कभी कन्फ्यूजन्स आते हैं। सो यू वन्स यू आर वर्किंग इन दिस, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, देन यू विल हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस ऑल दिस थिंग्स। नाउ जीएचजीस को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके लिए इनिशिएटिव क्या-क्या किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस को इंसेंटिव्स मिलते हैं, लोग अपनी कॉस्टिंग उनकी कम होना शुरू हो जाती है। देन पेपर ऑडिट्स वगैरह, एनर्जी ऑडिट्स वगैरह करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह भी उनको इंसेंटिव देती है और उनका बिल में उनको कुछ रिबेट वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर कंपनी if companies are using REs, that is renewable energies for their operations, then उनको better opportunities मिलती हैं from the कंपनीज, उनको सब्सिडीज भी मिलती हैं। देन उनको जिन उनके इन्वेस्टर्स वगैरह होता है और इवन उनके कस्टमर्स होते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं नाउ डेज। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दैट मीन्स इसके भी मैं आपको डेफिनेशंस फ्यूचर में अभी आगे बताता हूँ। सो बेसिकली आप इसके लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट यू मेक अ बेसलाइन। आप किसी भी साल को अपना बेसलाइन बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, 2024 को, 23 को, 22, 21, 25, किसी को भी, किसी भी आप कैलेंडर ईयर को और इवन फाइनेंशियल ईयर को आप अपना एक बेसलाइन बना सकते हैं। आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी कार्बन एमिशंस को स्कोप 1, 2 और 3 के में डिवाइड कीजिए और उसको मैनेज मेज़र कीजिए। वंस आपने मेज़र कर लिया कि हमने 2012 में इतने हज़ार टन पे हम लोग थे, या फिर इतने 100 टन पर हम लोग थे कार्बन CO2 इक्विवेलेंट में। नाउ हमारा टारगेट क्या है? हम कैसे-कैसे कम करेंगे? स्कोप वाइज़ अगर आप उसको कम करेंगे, सो यू विल हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे इसको बेटर कर सकते हैं। नाउ अब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप कम कर सकते हैं। कुछ एक लेवल तक आप अपने फ्यूल को यूज़ करना कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस में व्हीकल जो 100 लोग आ रहे थे अलग-अलग बाइक से या कार से, अब हमने उनके लिए 2 या 3 बस दे दी हैं। बट स्टिल हमने बस दी हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से कुछ जीएचजी एमिशन 100% हो गई। आप 100 यू कैन नॉट से कि मैं 100% कार्बन ज़ीरो नेट ज़ीरो हो जाऊँगा। उसके लिए आप यू कैन ट्राई टू बी कार्बन न्यूट्रल। अब कार्बन न्यूट्रल होने के लिए क्या होता है, देयर इज़ अ मैकेनिज़्म डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कि आप यू कैन बाय कार्बन क्रेडिट्स। सो कार्बन क्रेडिट क्या होता है बेसिकली कार्बन क्रेडिट एक 1 मेट्रिक टन, इट इज़ 1000 केजीज़ ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको 1 कार्बन क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है? और जीएचजी बोला जाता है, जीएचजी क्रेडिट बोल सकते हो, इट इज़ द सेम थिंग। सो बेसिकली इफ आई हैव डन समथिंग, मैंने 1 पेड़ लगाया या 10 पेड़ लगाए जिसकी वजह से उन 10 पेड़ ने विदिन 1 साल के अंदर एक हमारे एटमॉस्फेयर से 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 एब्ज़ॉर्ब कर ली। सो आई हैव 1 क्रेडिट ऑफ कार्बन, मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट आ जाता है, ठीक है? उसके लिए मेथड होती है, एक्सचेंजेस होती है जहाँ मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा कि देखो मैंने ये 10 पेड़ लगाए हैं, इनको बड़ा किया है। देन जो पहले नहीं थे, जो पहले से थे उसके लिए कोई कार्बन क्रेडिट नहीं मिलेगा। इन 10 पेड़ के लिए जो पहले से नहीं थे, इसको मैंने बढ़ाया, इनको मैंने लगाया, देन ये बड़े हुए, अब ये दे आर एब्सॉर्बिंग दिस अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न, जिससे कि मुझे इंसेंटिव मिलेगा और मैं और ज़्यादा पेड़ लगाऊँगा, जिससे कि और ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में से एब्ज़ॉर्ब होगा। सो ये जो ट्रेडिंग है इसी के लिए किया गया है। अब मुझे कौन देगा कार्बन क्रेडिट? कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं देगी। मुझे वो ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी देगी या इंस्टीट्यूट देगा जो कि कार्बन को एमिट कर रहा है इन द एटमॉस्फेयर। एक कंपनी है, कोई भी XYZ कंपनी है, उसने 1000 टन्स ऑफ
CO2 emissions किया है in 1 year due to different types of activities of theirs. So अब अगर उसको कार्बन न्यूट्रल बनना है तो उसके लिए वो क्या करेगा? पहले तो सबसे पहले जीएचजी को मेज़र करेगा। वन्स उसने उसको मेज़र किया, मेज़र करने के बाद वो कुछ अमाउंट तक तो खुद की एक्टिविटीज़ से उसको कम कर लेगा। उस 1000 टन्स जो CO2 इक्विवेलेंट उसने एमिट किया था, उसमें से 400, 500 या इवन 600 केजीज़ तक भी वो 600 टन तक भी वो कम कर देगा। बट उसके बाद उससे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको वो रोक नहीं सकता, जिसको वो बंद नहीं कर सकता, अदरवाइज़ उसका बिज़नेस बंद हो जाएगा। सो उन 400 बचे हुए जो जितने भी 400 मेट्रिक टन्स बचे हुए कार्बन CO2 इक्विवेलेंट जो थी, उसके लिए वो क्या करेगा, किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन के पास जाएगा जिसको बोलेगा कि अगर आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन एब्ज़ॉर्ब हुआ है एनवायरनमेंट में से, सो आप मुझे उतने टन्स ऑफ CO2 का क्रेडिट दे दीजिए, जिससे कि मेरा जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो आई विल बिकम अ कार्बन न्यूट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन। सो इस तरीके से उसके लिए ऑब्वियसली वो कुछ उसको अमाउंट देगा, XYZ कुछ भी एबीसी अमाउंट दे सकता है उसको। ₹5, ₹10, ₹1000, लाख रुपए, करोड़ रुपए कुछ भी दे सकता है। सो वो उन दोनों का आपसी होता है। देन उस तरीके से कार्बन मार्केट चलता है बेसिकली, कार्बन क्रेडिट का सिस्टम चलता है। सो नेट ज़ीरो क्या होता है? सो नेट ज़ीरो बेसिकली बैलेंस होता है जिसमें कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिशंस हुए हैं ड्यू टू द एक्टिविटीज़, उतने ही अमाउंट ऑफ आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उतना ही अमाउंट ऑफ जो कार्बन था फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कम हो गया। सो नेट ज़ीरो बेसिकली मैंने एक प्लांट से 1000 टन कार्बन एमिशन किया। मैंने दूसरी जगह पे इतने सारे पेड़ लगा दिए जिससे कि उतना ही 1000 टन कार्बन जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो गया फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द सॉरी एनवायरनमेंट। सो अगर मैंने ही खुद ने ये दोनों काम किए हैं, सो आई बिकम नेट ज़ीरो। अंडरस्टूड? और अगर मैंने जो जितने पेड़ लगाए थे, वो और भी ज़्यादा मैंने 1000 टन कार्बन एमिट किया था, उसने 2000 टन कार्बन एब्ज़ॉर्ब एब्ज़ॉर्ब किया फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो बेसिकली मैं बेसिकली पॉजिटिव में चला गया हूँ और मेरे पास 1000 टन कार्बन क्रेडिट आ जाएँगे, जिसको मैं किसी को दूसरे को बेच सकता हूँ, जिससे कि वो नेट ज़ीरो पे कार्बन न्यूट्रल पे जा सके। सो बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कार्बन न्यूट्रैलिटी एंड नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो मतलब मेरी खुद की एक्टिविटीज़ से मैं बराबर कर रहा हूँ। बट ऑन द कार्बन न्यूट्रैलिटी मैंने कुछ अमाउंट खुद कम किया और कुछ अमाउंट मैंने दूसरे से लिया है। अपनी एक्टिविटी नहीं, किसी दूसरे से मैंने कार्बन क्रेडिट लिया है, उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल। अंडरस्टूड? उसी को बोला जाता है कार्बन ऑफसेट भी। मतलब मेरी किसी ने पेड़ लगाए या फिर किसी ने ऐसा कोई एक्टिविटी किया, सोलर रूफटॉप लगाया या फिर सोलर प्लांट्स लगाए या फिर विंड प्लांट्स लगाए जिससे कि कार्बन एमिशन कम हुआ, जो कि होना चाहिए था अगर थर्मल पावर प्लांट होता तो। सो उनको जो कार्बन क्रेडिट क्रेडिट मिला है, उन्होंने मुझे दिया तो दैट इज़ ऑफसेट। मैंने अपने कार्बन को ऑफसेट उनको दे दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कार्बन ऑफसेट। बेसिकली ये जो एक बेसिकली ट्रेडिंग के जैसा होता है उसको, ठीक है? अ रिडक्शन इन एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जीएचजीस मेड इन ऑर्डर टू कंपनसेट ऑल द एमिशंस प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। कहीं पे एमिशन हुआ, ये कहीं पे भी हो सकता है पूरी दुनिया में। यूरोप की कोई कंट्री में कोई एमिशन हो रहा है और इंडिया में कोई ऐसी आपने काम फॉरेस्टेशन या फिर प्लांटेशन किया है जिसकी वजह से कार्बन एब्ज़ॉर्ब हुआ है, तो आपस में आप कर सकती है, इंटरनेशनली कहीं पे भी हो सकता है। देन व्हाट इज़ द सिक्वेस्ट्रेशन? सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। दिस कैन ऑकर नेचुरली फॉरेस्ट से हो सकता है, ओशन से हो सकता है, मैंग्रोव से हो सकता है, आप टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसको डीएससी बोलते हैं, डायरेक्ट एयर कैप्चर। अब ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो मशीन्स होती है बेसिकली जिससे कि हवा में से डायरेक्ट CO2 को कैप्चर कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। उसको कार्बन सिंक मतलब किसी भी जगह पे स्टोर करके रखेंगे, जहाँ स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन सिंक या फिर कार्बन कैप्चर करके स्टोरेज फैसिलिटी सीसीएस फैसिलिटीज़ आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये दीज़ आर द सम डेफिनिशंस ऑफ द कार्बन क्रेडिट मार्केट, कार्बन ऑफसेट, नेट ज़ीरो, कार्बन न्यूट्रल ये सब चीज़ें थी। नाउ अब देयर जो मैंने आपको बताया कि मैं इससे खरीद सकता हूँ, वो मुझे बेच सकता है, तो ये आपस में नहीं होता है। तो जैसे कि शेयर मार्केट होता है, सेबी है, बीएसई है, एनएसई है, इस तरीके से
एक्सचेंजेस बने हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से कई सारे बने हुए हैं, जिसमें से कुछ हैं वेरिफाइड कार्बन स्टैंडर्ड जो वीसीएस है, वेरा वगैरह जो होता है, वेरा के नाम से आजकल बहुत बहुत जाना जाता है इसको। ये एक एक्सचेंज है जहाँ पे लोग कार्बन क्रेडिट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं विद अ सर्टेन अमाउंट। गोल्ड स्टैंडर्ड है, देन सीडीएम है, तो इस तरीके से कुछ ये एक्सचेंजेस हैं जिसके थ्रू आप लोग फर्स्ट आपको अपना जो प्रोजेक्ट है जो कि एब्ज़ॉर्ब करता है कार्बन को, आपको उसको रजिस्टर करना होगा। देन वो उसको वेरीफ़ाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे कि आपके इस प्रोजेक्ट ने इस 1 साल में इतने हज़ार टन या फिर इतने टन्स ऑफ कार्बन को एब्ज़ॉर्ब किया है, उतना क्रेडिट वो आपको दे देंगे। देन जो भी एमिटर होगा, जिसने ज़्यादा एमिशन किया होगा, वो आपके पास आएगा और वो आपसे उस एक्सचेंज के थ्रू ही वो कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा। वो आपको कुछ पेमेंट देगा, देन आप वो जो क्रेडिट्स हैं वो आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और वो सर्टिफ़िकेट दिखा के वो बोल सकते हैं, नाउ वी हैव बिकम कार्बन न्यूट्रल। सो दीज़ आर द सम कार्बन रजिस्ट्रीज़ जहाँ पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, वेरिफ़िकेशन होगा, वैलिडेशन होगा, देन आपको हर साल कुछ ना कुछ बताया जाएगा कि आपको इस साल के इतने क्रेडिट्स हुए हैं, यू कैन सेल these credits to anyone in the world। ठीक है? सो दीज़ आर द बेसिक कार्बन रजिस्टर्स। अब इससे होता क्या है? सो बेसिकली जब मुझे कुछ पैसा मिलेगा क्योंकि मैंने जो प्लांट्स लगाए थे उसकी वजह से कुछ कार्बन एब्ज़ॉर्ब हुआ एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से मुझे कुछ पैसा मिला, अब मैं और कुछ पेड़ लगाऊँगा। इस तरीके से धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे इंसेंटिव्स मिल जाएगा, मुझे जैसे-जैसे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल डू, आई विल डू मोर प्लांटेशन, आई विल डू मोर प्रोजेक्ट्स सो दैट द कार्बन कैन बी एब्ज़ॉर्ब्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है? इससे इसी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट जिसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग भाग रहे हैं पूरी तरीके से क्योंकि दे आर गेटिंग द इंसेंटिव्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, वो कार्बन क्रेडिट से भी कमाते हैं। देन अलग-अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। आईआरईसी भी यू कैन अंडरस्टैंड आरईसी, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट भी मिलता है। सो इनको भी बेचकर वो लोग पैसे कमाते हैं और इन सभी चीज़ों से वो अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं और बायोडायवर्सिटी भी कंज़र्व होती है। सो ऑल दीज़ थिंग्स, इन सभी चीज़ों के लिए ही कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है जिससे कि जिसको एमिट करना है वो तो कर ही रहा है बट वो कुछ पे करेगा दूसरे बंदे को या फिर दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन को जो कि कार्बन को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएँगे। इससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं फॉर बोथ द पार्टीज़ और जो हमारा सोसाइटी है, उसको ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट्स होता है, रेवेन्यू भी जनरेट होता है फॉर ऑल द न्यू कंपनीज़ और एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म है। इससे कम्युनिटी को भी हेल्प होता है, डेवलपमेंट होती है बेस्ट और हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते हैं क्योंकि एयर पॉल्यूशन कम होता है और जीएचजी एमिशन जैसे-जैसे कम होगा वैसे-वैसे क्लाइमेट चेंज कम होता जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग कम होती जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऑल्दो मैंने आपको बातों-बातों में विद द एग्जांपल सब कुछ समझा दिया था कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मेक द बेसलाइन ऑफ आवर ऑर्गनाइजेशंस कि हमने 2024 में कितना कार्बन एमिशन किया है। In all scope 1, 2 and 3 इस तरीके से we will understand. Now once we have to measure कि हमने मेजर कर लिया देन वी हैव टू मेक द टारगेट्स, वी विल मेक द टारगेट्स कि 2025 से 30 के बीच में हम कितना रिडक्शन करेंगे, 35 तक कितना करेंगे, 40, 45, 50 तक हम लोग कितना रिडक्शन करेंगे अकॉर्डिंगली। देन जितना भी हमें रिडक्शन हम खुद कर सकते हैं विद द एफिशिएंसीज़ एफर्ट्स लगाने के बाद, वो तो ठीक है। बट उसके बाद जितना भी जो हमें बचता है, वो हमें करना पड़ेगा, कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए हमें करना पड़ेगा। So what I have told you earlier also कि 1 ton of CO2 equivalent is equal to 1 carbon credit. So for an example, if the baseline emissions of my organization for 2024 is 1 lakh tons of CO2 equivalent, and due to the different types of projects what I have done in within my organizations due to the technological advancement, due to the reduction of use of electricity, due to the different methods or actions what I have taken in my organizations, मैंने उसको 70,000 टन तक लेकर आ गया इन 2025। बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, कुछ मुझे काम करने ही पड़ेंगे और एमिशंस होगा ही होगा। देन टू मिटिगेट दैट थिंग मैंने उसको 30,000 टन्स जो है वो मैं मार्केट से कहीं से
किसी भी एक्सचेंज से, जो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड वगैरह बताए थे, सीडीएम और वेरा वगैरह, वहाँ से आई विल गो देयर। मैं वहाँ पर देखूँगा कौन से कार्बन क्रेडिट मुझे ईज़िली मिल सकते हैं, कम पैसे में मिल सकते हैं, मैं उसको उतना पैसा दूँगा और उससे वो 30,000 का कार्बन क्रेडिट्स खरीद लूँगा। तो 70,000 जो मैंने कम किया, 30,000 जो मैंने बाहर से ऑफसेट किया, जिसको ऑफसेट करना भी बोलते हैं, वो लिया मैंने, कार्बन क्रेडिट्स लिया और मैं कार्बन न्यूट्रल पे आ गया। सो दिस इज़ द बेसिक कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम और कार्बन मार्केट्स होता है। कार्बन क्रेडिट भी ऐसे ही काम करता है। सो ये कैसे डिपेंड करता है, प्राइसिंग जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। वो डिपेंड करता है अलग-अलग एक्सचेंज के ऊपर अलग-अलग होता है और इसमें भी क्वालिटी होती है। किसका वैलिडेशन कितना अच्छा है, कहीं-कहीं पे हो सकता है किसी का वैलिडेशन उतना अच्छा ना हो, तो मार्केट के हिसाब से ये डाउन होता रहता है। बेसिकली सप्लाई डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी सप्लाई कितनी डिमांड है। और प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि मैंने जो प्रोजेक्ट लगाया है उससे मुझे कितना कॉस्ट लगा है उसमें, उसके अकॉर्डिंगली भी मैं अपने कार्बन क्रेडिट्स का जो है प्राइस कैलकुलेट या फिर डिफाइन कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप उसको डेवलप करेंगे उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, देन आप उसको रजिस्टर करेंगे, उसमें कुछ कॉस्ट लगता है, देन वैलिडेट करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी से, वेरीफाई करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। सो ऑल दिस कॉस्ट को इंक्लूड करके, उसको मेज़र करके आई विल से कि मेरे कार्बन क्रेडिट का कितना वैल्यू है, उसका प्राइसिंग क्या है। सो ये चीज़ें होती हैं। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन टुडेज़ सेशन, हमारे पास टाइम थोड़ा कम ही था, 1 ही घंटा था, जिसमें हमने सस्टेनेबिलिटी का एक ओवरव्यू लिया, जीएचजी एमिशंस क्या होते हैं, जीएचजीस क्या होते हैं, कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, मार्केट कैसा होता है, कार्बन न्यूट्रल और नेट ज़ीरो क्या होता है। वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीज़ थिंग्स कार्बन क्रेडिट के साथ। अब वी हैव अराउंड 5 टू 5 मिनट्स की आपकी जो भी क्वेरीज़ हों, क्वेश्चन्स हों, आप मुझसे क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं और आज के बाद भी अगर आपको याद आते हैं, आपको मेरा मेल आईडी वगैरह मिल गया होगा या फिर मिल जाएगा, वहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड कि आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। किस कुछ क्वेरीज़ हो तो आप बताइए? So this is Devajit here. Thank you for the session. It was a very wonderful. So I have the two queries. First is that carbon credits. Regarding that, which are the specific industries, specific organization from whom we can take the credit of carbon emission. And number two is regarding the plantation. So I need to know how much tons of CO2 is getting reduced if a tree of any 1 year. Is there any specific calculation or thumb rule so that See, I can add how much tree needed to be planted for reducing the CO2 footprint? सो बेसिकली इसमें क्या है कि थोड़ा-सा आप लोगों को ये जानकर थोड़ा-सा ऐसा लग सकता है कि इतना कम कैसे हो सकता है? बट शॉकिंग हो सकता है कि एक जो प्लांट है, एक ट्री फुल्ली ग्रोन ट्री ट्री जो होता है, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है इन 1 ईयर। अराउंड सभी जितने भी स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़, वैराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ होती हैं, सभी का अलग-अलग होता है। किसी का 40 केजी भी हो सकता है, किसी का 50 केजी हो सकता है, किसी का 38 केजी हो सकता है, किसी का 35 केजी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी भी एक जो ट्री होता है, वो 1 साल में इतनी ही कार्बन को एमिशन एब्ज़ॉर्ब कर सकता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। सो इन ऑर्डर टू गेट द टन्स ऑफ 1000 टन्स ऑफ CO2 टू बी एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द ट्रीज़ ना, यू हैव टू प्लांट lakhs ऑफ ट्रीज़। So it is not the only solution. It is one of the solution, but it is not the only solution. इसमें डॉक्टर साहब भी कुछ बताना चाहेंगे आपको? So, Mishra ji just give you a very direct answer. If you want to be save 1 ton of the CO2 emissions through the plantation, it depends upon the size, year of the plant, how much it is older. Lot of things are there. Lot of
permutation combinations are there, species. But as a thumb rule, as a layman, if you have a 30 to 40 plants, well grown plants, 4 5 years old plants, it would be equivalent to the 1 ton of the CO2 in general. This is not a very specific, but you can claim that statement anywhere. Hope it is answered. Yes, और sir. और Thank you. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको रजिस्ट्रीज बताई थी, एक्सचेंजेस बताए थे, वेरा, सीडीएम और गोल्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये यहाँ पर जाके आप अपने इफ यू हैव अ प्रोजेक्ट, आप अपना प्रोजेक्ट पहले रजिस्टर करेंगे, और दे हैव द सर्टेन गाइडलाइंस, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को वो अपने स्टैंडर्ड के अंदर रजिस्टर करेंगे। वंस यू हैव रजिस्टर्ड देयर, देन ओनली आप फिर अपने प्रोजेक्ट को वहाँ पर वैलिडेट कराएंगे विद अ थर्ड पार्टी। उनके जो रजिस्टर्ड थर्ड पार्टी वैलिडेटर्स जो होते हैं, उनके थ्रू आप वेरिफिकेशन कराएंगे, वैलिडेशन कराएंगे, देन देन ओनली वो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स प्रोवाइड करेगा। दोज क्रेडिट्स कैन बी एक्सचेंज्ड ऑन दोज एक्सचेंज ओनली। आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, एक्सचेंज के थ्रू ही आपको लेना होगा। इंडिया में भी एक्सचेंज अभी कार्बन क्रेडिट का सर फिर से एक बार साइट का नाम बताइए। वेरा, गोल्ड स्टैंडर्ड, सीडीएम, And कार्बन। to drop into the message chat box so that Okay. can be. Okay. Yeah. Any other question? Because second presenter is waiting, so I would request just quickly close the. Sir, I have one question, sir. May I? हम्म, Sir, abhi this carbon credit, jo whatever the procedure has been explained, the acquiring of the carbon credits, and how much is it acceptable by the Indian judicial system, and will it be validated? Because as you know that any project which is getting implemented, they are going through EIA, CT, CTO, environment clearance as a process. So this is something which is mandated by the ministry and Indian judicial system. So, what is the acceptance criteria? Is there any scope that has been given by the Indian judicial system? as So, of now, will there be any compulsion of implementation? या सो संजय जी, एज ऑफ नाउ अभी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं है कि आप इतना करेंगे तो ही आप वैलिड हैं, या फिर कोई उनकी तरफ से कुछ अभी कंपल्शन नहीं है। बट यस, आप लोग जानते हैं कि 2070 का नेट जीरो का टारगेट है इंडिया का इन द यूनाइटेड नेशंस। सो इन द फ्यूचर ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपल्शंस भी आ सकते हैं कि यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू मेजर इट, एंड देन अभी भी सेबी की जो गाइडलाइंस हैं फॉर द टॉप 1000 ऑर्गेनाइजेशंस, वो बीआरएसआर रिपोर्टिंग उनको करनी है, और इन द बीआरएसआर वो जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें उनको जीएचजी एमिशंस अपने बताने पड़ते हैं। सो ये डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी तक कुछ कंपल्शन नहीं आए हैं कि आपको इतना कम करना है, इतना परसेंटेज। Anshu, question is different. Question is different. So let me answer. I think Sanjay asked, or who has asked? Yeah, I have asked Sanjay. Sanjay, as of now, it is not mandatory. First of all, second is already there is a set process for the validation nationally and internationally. So any of the judiciary is accepting or allowing to submit that validation report against any of the such activity which you want to be proved to our judiciary system. In future, maybe we have our own validation process or validation agency that may be rooted to all of such judiciary requirements. But yet it is not. So, one last question. Pertaining to the carbon emissions का जो calculation criteria है, so there is a standard. European standard is different and American standard is different. So when it comes to India, is there a standard page? I mean, which gives the carbon equivalent to the other pollutants? नो, एज ऑफ नाउ इंडिया में अभी डेवलप हो रहा है। अभी वी आर वर्किंग एज ऑफ मतलब विद द जीएचजी प्रोटोकॉल्स एंड आईपीसीसी के जितने भी फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली
ओनली इलेक्ट्रिसिटी में ही फैक्टर एक हमारे दिया था, दैट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, सो वी आर फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स। अभी तक इंडिया में ये इट इज एट वेरी इन्फेंट स्टेज, अभी धीरे धीरे काम इस पे चल रहा है। नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कुछ एक अच्छे लेवल पे कार्बन क्रेडिट सिस्टम भी आ जाएगा, क्रेडिट एक्सचेंज भी बन जाएगा, और वी विल हैव आवर ओन फैक्टर्स आल्सो।